Dear students, in the last lecture, I explained what are basic solutions, feasible solutions, basic feasible solutions, degenerate and non-degenerate basic feasible solutions, and finally the optimal basic feasible solution. I also explained some of the characteristics of solutions to LPPs. The first important result is I just explained these results without proofs. The first result that I explained is set of all feasible solutions. Set of all feasible solutions is a convex set. Set of all feasible solutions is a convex set. The second important result, and moreover, then I told you a definition of extreme point of a convex set, and after that there was the second result that every basic feasible solution of an LPP, अगर कोई भी LPP आप लेंगे तो इसका कोई भी basic feasible solution होगा corresponds to some extreme point of feasible reason. देखिए क्या बात थी इसमें, मैंने जो एक्सप्लेन किया था कि जो feasible reason होगा, feasible reason means this set of all feasible solutions, this is the feasible reason. ठीक है, और जो पहला रिजल्ट था वो यही था कि जो feasible reason होगा वो एक convex set होगा, and after that the second result was that जो ये convex set होगा उस convex set के जो extreme points होंगे बेसिकली जो LPP के बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस होंगे वो उन एक्सट्रीम पॉइंट्स के साथ में कॉरेस्पॉन्ड करते हैं. मैंने ये भी कहा था कि मैं नेक्स्ट टर्म पे, यानी आज का मेरा पहला लेक्चर जूम पे ऑनलाइन हो चुका है, तो ये जो सेकंड लेक्चर है इसके लिए मैंने बोला था कि मैं एक एग्जाम्पल से भी इसे एक्सप्लेन कर दूंगा. तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं ये कॉरेस्पॉन्डेंस किस तरह से होता है. ठीक है, तो अभी जैसा कि मैं एक प्रॉब्लम पहले मैं मेंशन कर देता हूं. फर्स्ट लेट मी मेंशन द प्रॉब्लम. द प्रॉब्लम इज दैट मिनिमाइज z equals 2x1 plus x2 subject to the constraints, and the constraints are say x1 plus x2 x1 plus x2 suppose greater than equal to 3, and another one less than equal to 6. Suppose x1 plus x2 greater than equal to 3 and less than equal to 6, x1 greater than equal to 2 and x2 greater than equal to 0. देखिए नॉन नेगेटिविटी रिस्ट्रिक्शंस में होता है कि दोनों बोथ द डिसीजन वेरिएबल शुड बी नॉन नेगेटिव. सो सिंस x1 इज ऑलरेडी गिवन ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सो देयर इज नो नीड टू राइट that redundant thing that x1 is greater than equal to 0 also, so there is no need to write it. It is understood from this constraint that x1 will be non-negative. So these are the non-negativity restrictions, and this is a combination of a constraint and non-negativity restriction. These are
टू कंस्ट्रेंट्स, तो ओवरऑल इसमें हमारे पास में तीन कंस्ट्रेंट्स हैं. नंबर वन इज x1 plus x2 greater than equal to 3. The other one is that x1 plus x2 less than equal to 6. And the third one is x1 greater than equal to 2. Now what I'm going to do is I will just find all the basic feasible solutions. तो एक तो मैट्रिक्स मेथड है ही है, लेकिन मैं ऐसा करता हूँ कि इसको डायरेक्ट मेथड से कर लेता हूँ, मैट्रिक्स मेथड से ना करके. सबसे पहला काम मेरा ये होगा कि इसे मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर लूँ, राइट. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में, हालांकि आपको बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन अगर चाहिए तो देयर इज नो नीड टू कन्वर्ट दिस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनटू मैक्सिमाइजेशन फॉर्म, क्योंकि केवल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या सॉल्यूशन की जब तक हम लोग बात करते हैं तो वहां पे हम लोग को केवल कंस्ट्रेंट्स को हैंडल करना होता है, राइट. फिलहाल मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कर रहा हूं, तो मैं ऐसा करता हूं कि प्रॉपरली इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करता हूं. स्टैंडर्ड फॉर्म में सबसे पहली बात क्या होती है कि जो ये मिनिमाइजेशन फॉर्म में है ये मैक्सिमाइजेशन में आ जाएगा. सो इट विल बी मैक्सिमाइजेशन ऑफ समथिंग z डैश z प्राइम एंड दैट विल बी नेगेटिव ऑफ 2x1 माइनस x2. ये मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि किस लिए इस तरह से हम लोग लिखते हैं, माइनस साइन क्यों लेते हैं मिनिमाइजेशन को मैक्सिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए. बाकी जो और कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसे पहला कंस्ट्रेंट आपका है x1 प्लस x2 greater than equal to 3. The second one is that x1 plus x2 less than equal to 6. The third one is that x1 greater than equal to 2. And the fourth one, there is no other constraint. The others are non-negative restrictions. So now what I do is that here I will use a surplus variable to convert it into an equation. So suppose that let us introduce surplus variable x1 plus x2. Suppose the surplus variable is s1, and then if we subtract s1 from this x1 plus x2, so that it becomes equal to 3. The second one needs slack variable, and x1 plus x2 plus, suppose the variable added is slack variable is s2, so it is equal to 6 now, and this one needs another surplus variable, so this gives us x1 minus s3 equal to 2. हालांकि और भी तरीके हैं इसको हैंडल करने के, लेकिन अभी चलिए मैं एक आसान तरीके से समझा देता हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड से समझा रहा हूँ. नाउ द अदर थिंग विल बी दैट x1 x2 एंड ऑल s1 s2 s3, ये सारे के सारे जो होंगे ये आपके नॉन नेगेटिव होंगे, राइट. नाउ आपके पास में अब जो है इसमें कितने I mean to say how many variables are there now. So now total there are 1 2 should change the color, 1 2 3 and 1 2 3 4 5. So there are overall total 5 variables now. And how many equations do we have? So we have 3 equations or constraints. और अभी जो 3 constraints हम देख रहे हैं ये हम लोग देख रहे हैं कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद में इसके 3 constraints हैं, ठीक. सो मैंने आपसे बताया था कि मैक्सिमम जो इसके बेसिक सॉल्यूशंस होंगे, या ठीक है, मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशंस जो होंगे वो होंगे 5c3. 5c3 is 10. So overall at the most you will be getting those 10 basic solutions, और उसमें से भी हम लोगों को पिक करने होंगे basic feasible solutions, ठीक है. तो अभी मैं यहाँ पर basic feasible solutions डिटरमाइन नहीं कर रहा हूँ. मैं पहले ग्राफिकल मेथड से जो इसके ग्राफ्स हैं वो पहले मैं प्लॉट करने में इंटरेस्टेड हूँ, तो साइड बाय साइड हम लोग इसके ग्राफ्स प्लॉट कर लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल let us have our axes. So this is x2, this is x2 axis, and the other one
is say x1 axis, right? Now this is our x1 and this one is x2 axis. अब अगर हम लोग बात करें जो इक्वेशंस इनइक्वालिटीज थी ओरिजिनली हमारे पास में, तो हम लोग ग्राफिकल मेथड में बेसिकली क्या करते हैं, इनको इक्वेशंस में चेंज करके और लाइंस, स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं. तो सबसे पहला काम होगा x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 6. उससे भी पहले मैं मार्किंग कर लेता हूँ. सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, 4, 5 and ultimately it is 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Similarly 1, 2, 3, 4, 5 and 6. अब x1 plus x2 equal to 6 if we plot this, तो कुछ इस तरह से हम लोगों को एक स्ट्रेट लाइन हम लोगों को ये मिल गई. आगे का पार्ट मैं इसमें प्लॉट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नेगेटिव साइड में जाने का कोई मतलब नहीं है. द अदर वन इज x1 plus x2 equal to 3. तो x1 plus x2 equal to 3 if we plot it you will be getting like this. और बहुत ही ऑब्वियस है, दोनों पैरेलल होंगी. अब x1 plus x2 has to be greater than equal to 3, right? तो if since x1 plus x2 greater than equal to 3 it is, तो यहां पर आपको सॉरी तो यहां पर आप लोगों को जाना पड़ेगा इस तरफ, क्योंकि x1 plus x2 is greater than equal to 3 और एंड ऑल्सो x1 plus x2 लेस देन इक्वल टू 6. तो इस तरफ आपको आना पड़ेगा ओरिजिन कंटेन करने के लिए. तो अभी तक हम लोगों का जो कॉमन रीजन है इन दोनों कंस्ट्रेंट्स में, वो इस तरह से हम लोगों को मिल रहा है, राइट? लेकिन अभी हमारे पास में we have another constraint and we have to plot it as well. The other constraint is x1 greater than equal to 2. If we plot x1 greater than equal to 2, तो x1 greater than equal to 2 के लिए हम लोग this is x1 axis and this is x2 axis. So where will be x1 equal to 2? x1 equal to 2 will be a line parallel to x2 axis and it will be passing from this point, right? So this line is nothing but this is x1 equal to 2 and you need x1 greater than equal to 2. तो आपको इस तरफ आना होगा और अल्टीमेटली आपको समझ में आ गया होगा कि आपका जो रीजन है, कॉमन रीजन, जो जिसको आपकी फिजिबल रीजन कहेंगे, वो क्या है. सो योर फिजिबल रीजन इज बेसिकली दिस शेडेड रीजन इन ब्लू कलर दैट आई एम शोइंग राइट नाउ. तो दिस इज द ultimately this is the feasible reason of the problem. Let me name these extreme points of the feasible reason. Let us call it capital A. Let it be capital B, A, B, then followed by C, and this is D. और ट्रेपीजियम जैसा कुछ हम लोगों को यहाँ पर A, B, C, D हम लोगों को यहाँ पर मिल गया. अब हम लोग एक तो ये काम करते हैं कि अगर हमें इस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है, z को मिनिमाइज करना है, तो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ z एट डिफरेंट पॉइंट्स, डिफरेंट एक्सट्रीम पॉइंट्स. और जो मैंने दो रिजल्ट्स बोले उसमें तीसरा रिजल्ट यही था. एक रिजल्ट ये भी था, सॉरी, जो मैंने दो रिजल्ट्स यहाँ लिखे हैं उसमें एक तीसरा रिजल्ट भी था कि जो ऑप्टिमम z होता है is attained at some basic feasible solution. और जो basic feasible solution है वो इस सेकंड रिजल्ट से किसको कॉरेस्पॉन्ड करता है सॉरी वो कॉरेस्पॉन्ड करता है एक्सट्रीम पॉइंट्स के साथ में. तो
ये तीन रिजल्ट्स ही इम्पॉर्टेंट हैं हमारे ग्राफिकल मेथड का बेस भी इन्हीं तीन रिजल्ट से बनता है। बेसिकली जो तीसरा रिजल्ट है ये बताता है कि जो ऑप्टिमम वैल्यू है z की वो किसी न किसी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन या यूँ कहें कि एक्सट्रीम पॉइंट पर मिलती है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसीलिए इसी बात को बेस बना करके जो हमारे फिजिबल रीजन जो कि कॉन्वेक्स सेट होता है, जो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स यानी कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ हम कह सकते हैं बिकॉज इट इज कॉन्वेक्स पॉलीहेड्रा, तो वहाँ पर जो जो इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं उन कॉर्नर पॉइंट्स पर ही अगर हम z की वैल्यू फाइंड कर लें, वहाँ से भी हम बता सकते हैं कि z कहाँ पे मिनिमम होगा। ठीक है, फिलहाल अगर हम लोग लाइंस ड्रॉ करने वाला मेथड फॉलो करें तो मैंने आपको बताया था कि आप इस काम को कैसे करेंगे। जैसे आप सपोज करेंगे कि सपोज let us take z is equal to 6 or say if you take z is equal to 6 और कम ले लेते हैं, let us take z is equal to 2, right? So if you want to if you take z equals 2, it means you are taking 2x1 plus x2 equals 2. This gives you x1 divided by 1 plus x2 over 2 equals 1. So basically z is equal to 2 is a line with intercepts 1 and 2 on x1 and x2 axes respectively. Now, so this is should change it. Now, so on x1 axis we have to take one intercept, and on the x2 axis we have to take two intercept. It means that this is something like this. राइट, सो इस तरह से इसको मैं एक्सटेंड कर देता हूं। तो इस तरह से हम लोग को एक लाइन मिलेगी और ये जो लाइन है दिस इज z इज इक्वल टू 2 लाइन, एंड जो z इज इक्वल टू 0 लाइन आप लोगे, ऑब्वियस सी बात है z इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 2 में सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा कि दोनों एक तो पैरेलल होंगी, और दूसरा z इज इक्वल टू 0 का मतलब हो गया कि x1 x2 0 से सेटिस्फाई हो रहे हैं, रखने पर सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो वो जो लाइन होगी वो हमारी बेसिकली इस तरह से z इज इक्वल टू 0 लाइन हम लोगों को मिलेगी, एंड दिस लाइन z इज इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू 2, दीज टू लाइन्स विल बी पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, तो अभी आपको ये पता चल गया है कि z किस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो z इस डायरेक्शन में जाने पर बढ़ रहा है, राइट, क्योंकि z इज इक्वल टू 0, देन z इज इक्वल टू 2, देन मूविंग फॉरवर्ड यू विल गेट z इज इक्वल टू 3, 4 एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो अभी आपको करना ये है कि जिस डायरेक्शन में z इंक्रीज कर रहा है उसी डायरेक्शन में इस लाइन को आप इसके पैरेलल धीरे धीरे खिसकाते रहेंगे, शिफ्ट करते रहेंगे, और वो पॉइंट फाइंड करेंगे, एक्सट्रीम पॉइंट फाइंड करेंगे। एक्सट्रीम पॉइंट ही मिलेगा वो आपको हर हालत में, वो पॉइंट फाइंड करेंगे फिजिबल रीजन का जहां पे ये लाइन मैं उसको हाईलाइट कर दूं, जहां पे ये जो लाइन है ये आपके फिजिबल रीजन में एंटर कर रही होगी, राइट। तो इस तरह से दिस आप देख सकते हैं कि A से पास कर रही है, राइट, जो हम z इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 2 या और आगे शिफ्ट करते जा रहे हैं। तो सबसे पहले वो लाइन जो फिजिबल रीजन में एंटर कर रही है, तो फिजिबल रीजन के कौन से पॉइंट के कांटेक्ट में सबसे पहले आ रही है, A पर, और फिजिबल रीजन जो आपका मिला है इस फिजिबल रीजन को सबसे अंत में ये लाइन किस पॉइंट पे छोड़ रही है, तो वो है C पॉइंट। बिल्कुल आप पैरेलल 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 बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करेंगे, सो ऑब्वियसली आप लोगों को ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आज हालांकि मेरा टारगेट दूसरा है, लेकिन फिर भी मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इससे पता चलता है कि जो मिनिमम z होगा, सॉरी, जो मिनिमम z होगा वो होगा ZA, और जो मैक्सिमम z होगा इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के लिए वो होगा ZC। ठीक, अब मैं बात कर रहा था जो रिजल्ट्स थे। देखिए, एक रिजल्ट तो मैंने यहाँ वेरीफाई कर दिया कि जो मैक्सिमम z और मिनिमम z है वो किसी न किसी एक्सट्रीम पॉइंट पर आपको मिलेगा। ऑब्वियसली बात है वो किसी न किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे ही कट कर रही है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक बात हम लोग और समझेंगे कि
बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन एक्सट्रीम पॉइंट्स आपस में कॉरेस्पॉन्ड कैसे करते हैं। तो बेसिकली रिजल्ट तो मैं नहीं प्रूव कर रहा हूं, लेकिन हाँ इलस्ट्रेशन पर्पस से ये एग्जांपल आपके लिए है। सबसे पहला काम ये करते हैं कि इस फिजिबल रीजन के सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं। ठीक, तो जो इसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं वो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। सो इफ यू वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए, you have to take intersection of x1 equals 2 and x1 plus x2 equals 3। उन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर 2,1। ठीक है, फिर आप बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ऑब्टेन कर लेंगे, जो दूसरा एक्सट्रीम पॉइंट है। दीज आर एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी आर वेरी सिंपल, 3,0। Similarly, you find the coordinates of C. Coordinates of C are 6,0 and the coordinates of D. D is actually the point of intersection of this x1 equals 2 and x2 equals 4। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स फिजिबल रीजन के हैं। अब मैं बात कर रहा था कि अभी मैंने इस प्रॉब्लम के जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस हैं या बेसिक सॉल्यूशंस वो डिटरमाइन नहीं किए थे। ठीक है, तो चलिए करते हैं इन्हें भी डिटरमाइन। हमारे पास में 10 कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। हम लोगों को क्या करना है, 5 वेरिएबल्स हैं और 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। तो आइदर वी हैव टू चूज 3 वेरिएबल्स और यू कैन से यू हैव टू लीव 2 वेरिएबल्स, राइट। तो सपोज दैट फर्स्ट केस, सपोज वी लीव S1 एंड S2। सो S1 एंड S2 को हम लोग 0 कर देते हैं। सो अगर S1 S2 को 0 करते हैं तो हम लोगों को यहाँ से क्या मिलता है, x1 plus x2 equals 3। Then again we get x1 plus x2 equals 6 because x1 plus x2 3 and x1 plus x2 6. This is going to create a problem. This will not give you any solution, no solution, because 3 and 6 cannot be इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, यो इस केस में आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। दूसरा केस चलिए हम ले ले रहे हैं। तो एक बात तो यहाँ से बहुत ही क्लियर है कि आप S1 और S2 दोनों को साथ में 0 नहीं ले सकते हैं, राइट। सो नाउ सपोज S1 इज S3 इक्वल टू S3 एंड इट इज इक्वल टू 0, राइट। तो अगर S1 और S3 0 हैं, राइट, इफ S1 and S3 both are 0, suppose S3 is 0, you will get x1 equals 2 and S1 you have already taken 0. S1 you have already taken 0. So from here you get x1 plus x2 equal to 3. And if you put x1 equals 2, you get x2 equals 1. From this x1 plus x2 equals 3. And from this second equation, x1 is 2 and x2 is 1, so you get s2 equals 3। ठीक है, तो ये दो वेरिएबल्स हैं, ये आपके हैं नॉन बेसिक वेरिएबल्स और ये जो 3 वेरिएबल्स हैं ये आपके हैं बेसिक वेरिएबल्स। अच्छी बात यह है कि सॉल्यूशन में जितने भी वेरिएबल्स हम लोगों ने डिटरमाइन किए हैं वो सारे के सारे 0 या 0 से बड़े हैं, तो ये फिजिबल भी है। सो दिस इज अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, या यूं कहूं कि दिस इज अवर फर्स्ट बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। और यहाँ पर x1 और 2 है और x2 1 है, तो ये भी कहने में कोई दिक्कत नहीं कि दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू कैपिटल A पॉइंट विच वॉज 2,1। क्लियर हो गया। चलिए एक और कर लेते हैं। जैसे सपोज दैट यू टेक S1 और S2 तो आप साथ में 0 नहीं ले सकते, आप S2, यस, नाउ दिस टाइम यू टेक S2 एंड S3 बोथ 0। ठीक है, सो इफ यू टेक S2 and S3 both of them equal to 0, in that case you again get x1 equals 2, you again get x1 equals 2 and
from S30 you got x1 equals 2, and you are also taking S20. So if you take the value of S2 as 0 and x1 is 2, so you will be getting x2 as 4. And now since this is 2, this is 4, 4 plus 2 is 6, minus you need to subtract 3 from here, so S1 is 3. This time you are getting another, or you can say second, basic feasible solution, and this is nothing but 2, 4, and this corresponds to D, राइट और जो पहला केस था उसमें आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो ये आपका बेसिक सॉल्यूशन भी नहीं हुआ, राइट. सो इन दैट पर्टिकुलर केस यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी बेसिक सॉल्यूशन इस पहले केस में. तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ मैक्सिमम, मैंने इसीलिए बोला था 5C3 जो होता है ये मैक्सिमम, यहाँ पर मैंने यूज किया मैक्सिमम बेसिक सॉल्यूशंस, इतने मैक्सिमम. और मैंने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन टर्म इसलिए नहीं यूज किया है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि जो आपको इस तरह से सॉल्यूशन मिलेगा वो हमेशा फिजिबल ही हो. ठीक है, जैसे ये दोनों केसेस में तो फिजिबल मिल गया है, लेकिन वैसे कोई ज़रूरी नहीं है. चलिए जैसा कि मैं बता भी देता हूँ कि फिजिबल होने की गारंटी क्यों नहीं है. जैसे सपोज दैट यू टेक x1 एंड x2 as 0, राइट. मतलब आपने इस बार इन दोनों वेरिएबल्स को नॉन बेसिक वेरिएबल्स चूज किया. ठीक है, सो इफ यू टेक x1 and x2 as 0, in that particular case, if you take this x1 x2 0, you will get s1 as -3, s2 as 6, and s3 as -2. ठीक है, तो ये सॉल्यूशन आपका फिजिबल सॉल्यूशन नहीं है. तो आपको बेसिक, दिस इज बेसिक सॉल्यूशन, यस दिस इज बेसिक सॉल्यूशन बट नॉट फिजिबल सॉल्यूशन. तो इस तरह से इस केस 4 में तो अभी आपको यहाँ पर टोटल कितने, मैक्सिमम 10 सॉल्यूशंस या 10 कॉम्बिनेशंस आप ले सकते हैं इस तरह से. उसमें से आपको मैं आगे आप लोग इसको ट्राई कर सकते हैं. आपको एग्जैक्टली आपको 4 बेसिक फिजिबल सॉल्यूशंस ही मिलेंगे इसमें, क्योंकि इस प्रॉब्लम के कॉरेस्पॉन्डिंग जो इसका फिजिबल रीजन है, जो उसके एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, वो एग्जैक्टली 4 हैं. इसलिए इन दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम यू विल गेट exactly 4 basic feasible solutions, okay, and each basic feasible solution will correspond to a unique extreme point of this convex set of feasible reason.